کنسیڈر کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں شوکت یوسف زئی صاحب. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب. ہے نا, ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ جو ایک نکتہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے, 3 روزہ ملیشین وزیر اعظم صاحب کا وزٹ ہے, سرکاری وزٹ ہے, اور یہاں پر ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ ڈسکشنز بھی ہوں گی. تو کیا امر مانے ہے اگر آپ پروٹیسٹ کو تھوڑا سا ریکنسیڈر کر لیں, جس طرح سے درخواست بھی کی ہے محسن نقوی صاحب نے؟ دیکھیں, یہ پرابلم ان کا یہ ہے نا کہ پہلے یہ دھمکیاں دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے پہلے سے جو ہے نا ان کے وزراء اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے رہے, انتشاری ٹولہ اور یہ اٹک پار کر کے دکھائیں, اور یہ ایسا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ان کا زوم ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ پولیس ہے, ان کے وسائل حکومتی, اب ان کے اوپر زوم ہوتا ہے. یہ سوچتے تو یہ ہے نہیں, نہ ان کی اتنی سوچ ہے ملک کے لیے. جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے ہی کر رہے ہیں. تو دیکھیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جب IMF کا قرضہ لے رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں صوبے کو ہم کچھ نہیں دیں گے, پھر آپ کہتے ہیں جی آپ دستخط کریں نہیں تو آپ غدار ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ ملک کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے, آپ اپنے وزراء کو صرف اس کام پہ لگائیں گے کہ جی بس سارا دن گالیاں دیں ان کو, انتشاری ٹولہ کہیں, غدار کہیں, ہم لٹکا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں کہ اس سے معاملات خراب ہو گئے ہیں. اب یہ کہ دیکھیں, عوامی اگر جمہوریت ہے اس ملک کے اندر تو عوام کی آواز سنی جائے, اور عوام جو فیصلہ کرتی ہے وہی جمہوری ملکوں میں فیصلے ہوتے ہیں. اگر اس طرح اگر کوئی کہے کہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے یا کوئی کسی اور ادارے کے پیچھے چھپ کر اس طرح وار کرے تو اس طرح ملک نہیں چلتے. تو میں تو یہی کروں گا کہ دیکھیں, کوئی بھی آئے, اگر ہمیں پروٹیسٹ کے لیے اجازت دے دیں اور پرامن پروٹیسٹ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے. تو شوکت صاحب, اس پہ ویسے یہ ہے کہ آپ ان سے ڈسکشنز کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں پروٹیسٹ کی اجازت دیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کی اس چیز کا احترام کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ملک کے لیے, ظاہر ہے آپ نے کہا نا یہ لوگ ملک کے لیے نہیں سوچتے, تو آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ ایک مہمان ملک میں آیا ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں اسلام آباد ہے کتنا سا, اس کو پروٹیسٹ کر کے جائم کر دیں گے تو وہاں پر کیا امپریشن جائے گا ان کے اوپر؟ دیکھیں, یہ ان پہ تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ NOC دیتے ہیں, اگلے دن یہ NOC کینسل کرتے ہیں, دفعہ 144 لگاتے ہیں, اور پھر NOC دینے کے بعد پھر اس کے بعد یہ سارے کنٹینر لگا کے سڑکیں بلاک کر. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی موقع ہے تو اس پہ کرنا ہی کرنا ہے؟ نہیں, موقع نہیں ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو پاکستان ہے الحمدللہ, کوئی آئے گا کوئی جائے گا. اتنی سیاسی بصیرت رکھنے والی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اور یہ تو دورے تو پہلے سے پلان ہوتے ہیں, یہ تو نہیں کہ پرسوں ان کا دل چاہا سرکاری وزٹ پہ آ گیا. دیکھیں, احتجاج ہر ملک میں ہوتا ہے, اور احتجاج جو ہے اس پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سارے سڑکیں بلاک کر دیں. اگر یہ سڑکیں بلاک نہ کریں تو ایک جگہ پہ احتجاج ہو جائے گا, بات ختم. لیکن یہ تو خود احتجاج سے پہلے یہ احتجاج کو کامیاب کر دیتے ہیں. لیکن شوکت صاحب, 2014 آپ کو یاد ہے کہاں تک پہنچے تھے, پھر کیسے کیسے آگے بڑھتے گئے, کیا کیا ہوتا گیا, پھر اس کے بعد وہ درمیان میں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں درخت جلانے والا واقعہ, سارا کچھ سب کے سامنے ہے. تو کارکن تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب پہنچ کے اگر اسپیچ کریں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کارکنوں کا خون جو ہے وہ جوش نہ مارے؟ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر کوئی لچک آپ نہیں دیکھ پا رہے, اس لیے کہ ان کو طاقت کا زوم ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طاقت کے ذریعے ان کو کچھ لیں گے. تو یہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے, جس طریقے سے سپریم کورٹ کے کچھ چیف جسٹس صاحب اور باقی لوگ لگے ہوئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس میں اگر آپ ایسے آئینی ترامیم لے کر آئیں گے جو بعد میں چل کے ملک کے لیے نقصان دہ ہوں گے, تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس ملک. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے گا, یہ اس وقت مولانا صاحب ظاہر ہے کہ وہ بڑے امپورٹنس رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے کہ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ کی KP گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں, لیکن وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر یکجہتی کا مظاہرہ کریں, یعنی کہ جو میسج دیں, آپس میں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جو بیرون ملک میسج جائے, کسی مہمان کے سامنے میسج جائے, وہ پازیٹیو جانا چاہیے. ان کی جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں, اگر یہ اس طرح کا یہ گورنمنٹ کر لیتی 2 دن پہلے تو معاملہ سدھر جاتا. لیکن آج مجھے بتائیں کہ آج سارے قافلے چل پڑے ہیں, کوئی کراچی سے آ رہا ہے, کوئی لاہور سے آ رہا ہے, کوئی خیبر پختونخوا سے جائے گا,
साउदर्न डिस्ट्रिक्ट वाले रात को पहुंच गए हैं, रिया खान वाले। तो ये मुझे बताएं कि अब इनको अगर संजीदगी होती है और टीएलपी वाले जिस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दिन अचानक ही फैसला आप लोगों ने किया कि जी जलसा मुलतवी होगा और फिर यकलख्त हो भी गया, तो उस दिन भी हो गया था, तो होने को तो किसी वक्त भी हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको इतनी फिक्र थी ना, अच्छा, तो ये बजाय इसके कि इनके वज़रा आके धमकियां देते तो ये बेहतर ना होता कि ये नेगोशिएट कर लेते कि जी हम आपको सेफ पैसेज दे देंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, तो ये सारी चीजें तो हो सकती थी ना। लेकिन अब इस मौके पे जबकि सारा कुछ हो गया, अब ये तो देखें ये नालायक हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती कि मुल्क को कैसे चलाना है। ये बिल्कुल इनका जो है ना आवाज बाख्ता हो गए हैं और ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इनके पास। शौकत साहब, मैं इस पे आप अगर बात आपकी दुरुस्त भी तस्वुर की जाए, जो आप कह रहे हैं वो ठीक तस्वुर किया जाए, लेकिन इस वक्त आपने कहा वो नालायक हैं, चले मान लेते हैं ऐसा है, उनको हुकूमत नहीं चला सकते, पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी है वो नहीं है, जो भी आप कहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दूसरे मुल्क के एक सरबराह पाकिस्तान के सरकारी विजिट पे आए हुए हैं जो कि इस्लामाबाद में मुकीम है, क्या उनकी मौजूदगी का ख्याल करते हुए, एहतराम करते हुए, ताकि दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत मैसेज आए, हो सकता है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी आए तो ये चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं, आप करेंगे कंसिडर या नहीं? मैं देखिए अब तो ये मौका तो नहीं है ना, अब मौका नहीं है, ठीक है। हम अब सारे लोग तैयारी कर लिए, ओके और गवर्नमेंट की तरफ से सिवाय धमकी की और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। चलें, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट ऑन दैट। अब लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। मुझे ये जरा फरमाइएगा, ये जो फैसला सामने आया है आर्टिकल 63A से मुतालिक, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये हम तस्लीम नहीं करते, इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला नहीं है दुरुस्त उनकी नज़र में, तो अब क्या आपके पास आगे ऑप्शंस क्या हैं, लीगल ऑप्शंस क्या हैं, क्या करेंगे? देखिए ज़ाहिर है वकला साहिबान इस पे ज़्यादा बता सकते हैं, क्या नज़रसानी के लिए दोबारा दरख्वास्त दी जा सकती है, क्या फुल बेंच इसका डिसीजन कर सकता है, ये तो सारे ऑप्शंस तो होंगे ना। और ज़ाहिर है देखें ये तो बिल्कुल आप बकरा मंडी बना रहे हैं कि जो भी आए ख़रीद के ले जाए। और क्या हमारे इससे पहले जो है क्या मेंबरान असम्बली की मंडियां नहीं लगती रही हैं? हाँ। ये छांगा मांगा कहाँ से सियासत शुरू हुई है? सर जहाजों में भर भर के भी आते जाते रहे, आपको याद नहीं है ये? तो ये जो है ना अगर इस तरह हो गया और खुली छुट्टी दे दी तो फिर तो सियासत तो खत्म हो जाएगी। और ये यही चाहते हैं क्योंकि PMLN की सियासत खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई, सिर्फ पैसों के जोर पे चल रहे हैं सारे। एक PTI है जो जिनके लोगों को लोग वोट भी फ्री में देते हैं, खर्चा भी उनका नहीं होता है। अब ये एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी ये 63A जो है ना वो इस तरह होगा, इस तरह होगा और आप किसी की मर्जी होगी। अब ये एक जज को ये क्या ज़ेर देता है कि वो तो इस तरह की। शौकत साहब, आपको लगता है कि इस वक्त सिवाय PTI के आपको लगता है कि वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि नज़रियात की बुनियाद पर चलती है, बाकी तमाम जमातें ज़र और ज़ोर से चलती हैं? इज दैट व्हाट यू वांट टू से? देखिए बाकी जमातों को क्या नजरिया है मुझे बताएं। ये लोग जमहूरियत की बात करते थे, आइन कानून की बात कर, आज कहाँ है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे नहीं बने हुए हैं आज? ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। पीपल्स पार्टी हमेशा वक्त की बात है, आप भी बने हुए थे, अब वो बने हुए हैं। तो देखिए हम बने हुए थे तो हमने तो उसकी सजा काट लिया ना। हम बने हुए थे तो हमने तो माफी भी मांगी है ना। मुशर्रफ का साथ दिया था, इमरान खान ने आकर माफी मांगी। जो इस 2018 की जो बात हो रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि कहाँ खड़े हैं हम। तो देखिए कुर्बानी देनी पड़ती है जमहूरियत के लिए, इस तरह फ्री में नहीं आता है। ये लोग जो है ना अब सिर्फ अपनी आखिरी उम्र में अपनी वो क्या कहते हैं सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए कोई सदारती महल में घुसा हुआ है, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसा है, उनको पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि मुशर्रफ साहब का साथ दिया था, उसके बाद इतना अरसा गुजरा, फिर दोबारा हुकूमत का मौका मिला, उस वक्त तो शायद एक नशिस्त थी। अब तक इसका मकसद ये है कि सबक तो 2018 के बाद भी नहीं सीखा। नहीं देखिए अब फिर मौका मिलेगा तो शायद फिर ना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उस वक्त भी PTI को वोट दिया है, 2018 में ठीक ठाक वोट दिया है। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि ठीक है जो जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि जी हमारे साथ नहीं थे, गो के हमें लोगों ने वोट दिया। अगर उस वक्त भी अगर हम अकेले चलते तो हम उस वक्त भी उससे ज्यादा सीटें ले लेते। लेकिन चलो हमारे साथ लोग नती हो गए। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आज बाकी जमातें कहाँ खड़ी हैं, कहाँ है जमहूरियत? क्या जमहूरियत के अंदर जो एहतजाज है क्या उसको इतनी बुरी नजर से देखा जाता है?
True. जमहूरियत में तो वेलकम किया जाता है। मैंने आज शौकत साहब, आप तारीख उठा के देखें, जब मीडियम का जलसा हो रहा था हम्म, पेशावर के अंदर, तो मैं वजीर इत्तलात था और मैंने पानी फराहम किया था, बाकायदा कंटेनर खड़ी किए थे पानी के। मैंने कहा वहाँ खड़े रहो, गर्मी थी। नहीं, यू हैव ऑलवेज बीन द काइंड वन सर, ये तो आई एडमिट। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आप लोग कह रहे हैं कि पीटीआई वाहिद जमात है जो नज़रियात पे चलती है और इस पे लोग फ्री में वोट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग का मामला है इस पर आप ज़र और ज़ोर की बात करें, मीन्स के जो आपके अपने लोग हैं उनके ऊपर भी आपको शुबहात मौजूद हैं कि वो किसी तरीके से दूसरी जानिब जाके वोट कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि हमें पूरा यकीन है अपने मेंबरान के ऊपर। अच्छा। लेकिन देखें, पैसा धूस धांधली, एक तरफ दबाव हो, एक तरफ पैसा हो, तो कुछ लोग स्लिप भी हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये कि मुझे यकीन है इस दफा, क्योंकि जो लोगों ने सख्तियां झेली हैं, उसके बाद उनको टिकट मिले हैं, वो असेंबली में पहुंचे हैं, अगर इसके बाद भी वो ठीक जीतते हैं या प्रेशर में आते हैं तो ये तो उनका अपना मसला होगा ना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अवाम जो है फिर उनको माफ नहीं करेगी। जो भी बिकेगा वो हल्कों में नहीं जा सकेगा। का मतलब ये वो दौर नहीं है जो 1990 का या 80 का। चलें ये जाते वो जाते, तो- वैसे आई गॉट यू पॉइंट, लेकिन ये है कि एक आखिरी दफ़ा कि इस्लामाबाद में वो कंटेनर्स वगैरह लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने पैगाम भी दे दिया, वज़ीर आला साहब भी, लेकिन प्रोटेस्ट होना ही होना है, आज होके रहेगा। इंशाल्लाह प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन प्रोटेस्ट होगा। Okay. और ये हुकूमत चाहती है कि कोई ऐसा वाकया हो जाए जिससे बॉर्डर टाउन या इस तरह की कोई चीजें बने, लेकिन अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हमारे रास्ते ना रोकें। और अगर ये रास्ते रोकेंगे तो ये इनकी जगहसाई होगी, इनका वो होगा। लोग तंग आ चुके हैं इनके कंटेनरों से। Okay. वही एहतजाज आवाम कर रही है, आप आवाम का रास्ता कैसे रोकते हैं? ये आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? ये किस दुनिया में आप रह रहे हैं? और मोहसिन नकवी को किसने सियासतदान कहा है? ये तो सियासतदान नहीं है, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहाँ का सियासतदान आ गया? ना इसको सियासत आती है, ना इसको कोई विजन है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आया है और पूरे मुल्क पे राज कर रहा है। वजीर आजम का भी इख्तियारात नहीं है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी रहा, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, इधर भी बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, यार इसको तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो इसका पूरा एहतसाब करेंगे हम। ये तो पाकिस्तान है, कोई तमाशा तो नहीं है कि तमाशा बनाया हुआ इन्होंने पाकिस्तान। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच जी। शौकत यूसुफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, जलसा होके रहेगा। दिस इज़ व्हाट ही इज़ बीन सेइंग। अल्लाह ताला रहम करे, जो कुछ हो वो ठीक तरीके से हो। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है, तो ज़ाहिर है कि उसकी अपनी रीज़न्स हैं। पहले तो रीज़न्स नहीं भी थे, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब ये है कि मलेशियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी की बिना पर वो ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, इस्लामाबाद ब्रेक लेनी जी? ओके, चलें जी, इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या इस वक्त वहाँ पर ना, तो वो भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या तैयारियां हैं, गवर्नमेंट क्या तैयारियां कर रही है, क्या कारकुन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पेशावर वगैरह की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे आपको तमाम तर। लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।